Hi guys, welcome to another interview of Talks with TEC. My name is Jibran and I'm here with my friends Ekta, Navya and Himanshu. First up, I hope you guys are taking care of yourself and your loved ones and trying to avoid as much as possible of any kinds of physical contact. That being said, let's start today's session. So, 8th November 2016, around 8:15 p.m., the Honorable Prime Minister of India comes live and makes a huge announcement about demonetization in India. And it affects us all. We are scared, we are lost, we don't know what to do. The businesses take a hit, but we survive. 2 years later, in 2018, May, the amazing Make in India campaign is launched, and this time it's totally different. This time it's all about growth. The businesses flourish, new ideas come in, the startups take the market by a storm. Now, these two events affect all of us in a very, very different manner. But there was one similarity in both of these events, and that was an organization working day in and day out to make our lives easier and at the same time strive for its own success. And that was Paytm. Whether it's Make in India or the demonetization, Paytm has always been appreciated for not only because of the amount of work that has put in to bring the shift from cash to liquid money, but also and more importantly, because of the innovation that this organization gets around with the help of initiatives such as Bill for India. So for today's interview, we have someone who was the brain behind Paytm's Bill for India. He started his career as a chartered accountant because of the circumstances in his life. But his love for coding and innovation led him to start his own startup while pursuing studies. He went on to become one of India's youngest and most successful entrepreneurs, and then there was no looking back. He's an author, a coder at his heart, a very, very passionate innovator. Ladies and gentlemen, the Vice President of Paytm, Mr. Saurabh Jain. Hello, sir. How are you? Fine. Okay, sir. So we can start asking the questions as soon as you say that you are ready. Yes, Whenever you're ready. I'm ready. Okay, sir. So first things first, sir, your passion for coding was fueled by your desire to code a video game. Now, I can remember one another very similar kid who too fell in love with coding with a desire to create his own video game, and he was Elon Musk. Now, both of you ended up bringing a revolution. But sir, still, India as a society is super conventional when it comes to choosing one's career in the direction of their passion. So don't you think that it's high time that this thinking should be changed? And how do you suggest that this can be changed? See, first, I was not knowing that Elon Musk started to started coding to learn about video game programming. But it's good to know that he also started like that. So I would say is that see, obviously, what I've realized is that video games are something which most kids like, and they can be used as a force for teaching also. And first thing is that generally in school we believe that most of the curriculum is useless, and if you see, many of the concepts are not used in day-to-day life. But interestingly, what I saw was most of the 50% of the maths which is taught in school is usable in making video games. So it's a very interesting thing. The other thing is that many kids have different passions, and generally we see India mein there is an issue that like parents want them to do only specific thing. So I can share you a story. I started. So I was doing coding, and so I saw the same streak in my son when he was 6 years old. He is now 10 years old. He doesn't code now, but in when he was 6 years old, he started doing coding, and I opened a maker space where I called some students from neighborhood who can come, and I was teaching them Python and other some other languages, etc. So one student was there who was from class 8, and one day his mother came and she said, so earlier his mother used to come and she used to say, uh, he's doing great and he's loving it and all those kind of things, and she was very motivated to send him. But one day she said ki we would have to discontinue the class. So she said he doesn't have time. So I said I also don't have time, but I do it more like a hobby. So she said no, he has to go to Akash Institute. So he was doing Python, and I was teaching him building a chatbot. I was teaching him and my son to build a chatbot. So the interesting thing was that she said, "Nahi, isko we have to." Can I use Hindi? Yeah, sure, sure. Please, sir. Please, please. तो exact उनका dialogue ये था. तो I said,
please let him continue Python. So she said, नहीं इसको आकाश इंस्टीट्यूट भेजना है. And I said, आकाश क्यों भेजना है? She said, IIT भेजना है. तो मैंने कहा IIT क्यों भेजना है? So it was like cross questioning. So she said, we want ki, even though his father was having a shop in Karol Bagh in Delhi, so she said, no, we want him to do job and we want him to join Google. So unfortunate thing, मतलब I am a big fan of Sundar Pichai, but unfortunate thing is इंडिया के अंदर काफी सारे लोगों को एक इस समय रोल मॉडल सुंदर पिचाई बन गए हैं, तो अब उसका नुकसान कहाँ होता है? आई एम जस्ट शेयरिंग इट. सो आयरॉनिक लगता है बट है सच. सो शी सेड उसको गूगल भेजना है. तो आई सेड गूगल में जाके क्या करेगा? तो शी सेड वहां जाके कुछ भी करेगा, वी आर हैप्पी कि वहाँ कैरियर हो जाएगा. मैंने कहा आपको पता है वहां जाके ही विल बी कोडिंग पाइथन, एंड ये पाइथन मैं आज ही सिखा रहा हूँ इसको 8th में, तो जब तक ये गूगल जाने लायक होगा तो पाइथन बहुत आ जाएगी. शी सेड नहीं, गूगल में जाने के लिए आईआईटी जाना जरूरी है, आईआईटी में जाने के लिए आकाश इंस्टीट्यूट जाना जरूरी है, तो आपके यहाँ आना जरूरी नहीं है. एंड आई वाज शैटर्ड अ लॉट जब वो नेक्स्ट डे वो स्टूडेंट नहीं आया, मतलब नेक्स्ट क्लास में जब वो नहीं आया, तो आई वाज अ लिटिल शैटर्ड. मैंने कहा इनको इतना समझाया 1 घंटा, उसके बाद भी वो सिचुएशन वहीं की वहीं रही. एंड सो व्हाट आई हैव रियलाइज इज इंडिया में इट्स वेरी डिफिकल्ट. आई हैव सीन, मतलब अब इसका इशू क्या रहता है कि जनरली पीपल, पेरेंट्स डोंट वांट देयर किड्स टू लर्न. पेरेंट्स वांट दो ही चीज चाहिए, लक्ष्मी का आशीर्वाद चाहिए, शक्ति का आशीर्वाद चाहिए. सरस्वती की किसी को जरूरत है नहीं इस देश में, मैंने देखा है. तो प्रॉब्लम यही है कि पीपल गो टू यूनिवर्सिटीज, पीपल जॉब्स में भी देखते हैं यूनिवर्सिटी सर्टिफिकेशन एक पॉइंट पे. तो नोबडी इज इंटरेस्टेड कि आपको नॉलेज है या नहीं. एवरीबडी इज इंटरेस्टेड आपके पास सर्टिफिकेशन है या नहीं, आपके पास क्रेडेंशियल्स है या नहीं. दैट इज द ट्रूथ, बट आई थिंक इंटरनेट इज चेंजिंग दैट. एंड अ पर्सन लाइक मी फॉर एग्जांपल, मेरा तो सारा का सारा करियर ही आई वुड से कि सोशल मीडिया एंड ऑनलाइन एंड इन चीजों की वजह से बना. मतलब हैड आई बीन born 20 years ago, जो I was born around 1980, if I was born say around 1960, तो I would have been in a big problem, because क्या होता है कि I was a coder and I was able to learn coding and all these things due to, because I started learning C language in class 8. At that time there was no internet, but uh, after 5 years internet came and it made things easy. But had internet not come, so it would have been very difficult, because आपने गुरु फिल्म देखी होगी ना, तो इंडिया के अंदर क्या है कि एक तो वो होती है जो पैसे ना होने के, जो गुरु फिल्म में दिखाते हैं कि आप पैसे वाले नहीं हो तो यू फेस बैरियर्स टू एंट्री. एक और बैरियर टू एंट्री है कि आप सही कॉलेज में नहीं पहुंचे, आप सही कंपनी में नहीं पहुंचे, आप, मतलब आई हैव, मतलब मैं एक लास्ट इसको पॉइंट को खत्म करता है, आई वुड लाइक टू शेयर, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है. तो सम, मतलब एटलीस्ट 2-3 पीपल हैव टोल्ड मी कि देयर आर, मतलब ये मैं एक जनरल इंडस्ट्री में जो पुराने ओल्ड कॉर्पोरेट्स हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट देम, तो देयर आर बैरियर्स ऑफ एंट्री की इफ यू आर फ्रॉम XYZ इंस्टीट्यूट तो आपको हम VP एंड अबव नहीं बनाएंगे. इफ यू आर फ्रॉम IIM तो हम आपको VP बना देंगे पर CEO नहीं बनाएंगे. CEO किसको बनाएंगे? जो अमेरिका रिटर्न होगा, US रिटर्न होगा, स्पेशली अगर वो हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड, MIT रिटर्न है. तो दीज आर सम ऑफ दी बैरियर्स टू एंट्री. मतलब मिडिल क्लासेस को IIT IIM का बड़ा शौक है, बट वो वहां जाके वो बड़ा इंटरेस्टिंग पता चलता है कि इवन दोस काइंड ऑफ बैरियर्स टू एंट्री आर देयर. हम कहते हैं लेडीज के लिए क्लास सीलिंग है, मैं तो कह रहा हूँ यहाँ पर जेंट्स के लिए भी क्लास सीलिंग है कि आप कहाँ से पढ़े हो. एंड जो पहले के जमाने में कास्ट सिस्टम था, आजकल वो इंस्टीट्यूट का सिस्टम बना हुआ है. तो दैट इज ट्रूथ, बट इंटरनेट इज द बिग लिबरेटर. अगर आप प्रॉपर इंटरनेट पे फोकस करो एंड यू कैन हैव अ ब्रांड नेम एंड देन यू डोंट रिक्वायर दोस थिंग्स. तो आई बिलीव, आई एम अ लिटिल होपफुल कि ये विद इन नेक्स्ट 10-15 इयर्स ये जो इंस्टीट्यूशनल का सिस्टम है ये कम हो जाएगा. एग्जैक्टली सर, नॉलेज हमेशा इज प्रायोरिटी. और एंड आई होप कि वो चीज चेंज हो, जैसे आपने कहा कि इंस्टीट्यूशनल जो कास्ट सिस्टम वो चेंज हो जाए. इंस्टीट्यूट्स आर गुड. व्हाट आई एम नॉट सेइंग कि इंस्टीट्यूट्स में खराबी है, मतलब इसमें मैं एक चीज बड़ा क्लियर करना चाहता हूँ. बट इंस्टीट्यूट, मतलब IIT एज एन इंस्टीट्यूशन इज गुड, बट वो कास्ट सिस्टम क्या है कि द्रोणाचार्य अर्जुन को सिखाते तो सही थे, बट वो एकलव्य के लिए कास्ट सिस्टम था ना वो. तो वो प्रॉब्लम वहां है कि द्रोणाचार्य वाज नॉट अ बैड टीचर, अर्जुन वाज नॉट अ बैड डिसाइपल, बट एकलव्य के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो प्रॉब्लम है. तो वही सेम चीज इज हैपनिंग टुडे आल्सो. आप X इंस्टीट्यूट में चले जाओ, Y इंस्टीट्यूट में चले जाओ, देयर आर लॉट्स ऑफ इश्यूज इन दैट सेंस. एग्जैक्टली सर.
तो दैट गेट्स मी टू द सेकंड क्वेश्चन, जो कि सर आप हमेशा से कोडर बनना चाहते थे, आपने पहले भी बहुत कहा है, बट सर सर्कमस्टेंसेस की वजह से यू हैड टू परस्यू योर सीए डिग्री। बट सर आपने ये भी कहा था कि आपका जो करियर है इट स्टार्टेड टेकिंग शेप इन स्कूल एंड नॉट इन कॉलेज बेसिकली। आई मीन इन स्कूल ओनली यू न्यू कि मेरे को करना क्या है, मेरे को कोडर बनना है, आई लव इट कोडिंग। तो बट सर यू सेड आल्सो कि यू फेस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, जैसे कि यू वांटेड टू स्टडी कंप्यूटर्स विद कॉमर्स बट वो ऑप्शन ही नहीं है। हाँ तो सर एजुकेशन सिस्टम हमेशा से, इंडिया का एजुकेशन सिस्टम हैज बीन अमेजिंग बट हैज आल्सो बीन द पार्ट ऑफ डिबेट सिंस एटर्निटी सर। तो व्हाट डू यू थिंक, यानी कैसे ये चेंज हो सकता है सर? What changes can be brought and how Yeah, can I think education system will change. The best thing internet has done is कि सरस्वती की एक्सेस तो हो ही गई है ना, अब आपको लक्ष्मी और शक्ति के भरोसे नहीं रहना पड़ता सरस्वती के लिए। तो आई थिंक दैट हैज हैपेंड। अनफॉर्चुनेटली फॉर मी 2-3 साल थोड़ा लेट आया इंटरनेट, और 2-3 साल 5 साल पहले आ जाता तो और फायदा होता। बट फॉर्चुनेटली अगर देखो ग्लास हाफ फुल और हाफ एम्प्टी की तरह देखो तो हाफ फुल देखो तो फॉर्चुनेटली व्हेन आई पास 12 internet started coming, although internet was pretty expensive, so I had to go to my cousin's office and वहाँ मैं internet access करा करता था, मुझे ध्यान है। And then I was the first person in my neighborhood जिसने internet लगवाया, DSL connection जिसने लगवाया था। तो आई थिंक वो इंटरनेट से दोज थिंग्स आर नाउ रिजॉल्विंग। मेरे केस में तो इट वाज व्हाट हैपेंड वाज कि माय फादर, आई वांटेड टू बिकम अ कोडर बिकॉज वही था कि अगर गेम्स बनाने हैं तो आपको, एंड ये भी व्हाट आई रियलाइज आफ्टर नाउ इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इज दिस इज अ मीडिया हाइप, कि आपको अगर कुछ भी अच्छा करना है तो आपको इंजीनियरिंग करनी है। दिस इज अ मीडिया हाइप, मतलब आपको जरूरत नहीं है इंजीनियरिंग करने की, एंड इवन उस समय भी नहीं थी, बिकॉज देयर आर लॉट्स ऑफ अदर थिंग्स। फॉर एग्जांपल गेम्स बनाने में द रोल ऑफ अ डिजाइनर इज द बिगेस्ट, मतलब यू कैन ऑलवेज हैव अ टीम, यू कैन आउटसोर्स टू फॉर कोडिंग, बट यू कैन नॉट आउटसोर्स डिजाइनिंग। बट अनफॉर्चुनेटली उस समय यही लगता था कि गेम्स का मतलब होता है कि यू हैव टू कोड। तो उस समय आई बिकेम अ कोडर। सो वन डे माय फादर सेड ठीक है, ही वाज इन सीए, तो ही वाज अ सीए, तो ही सेड कि कोई नहीं, तू सीए की जगह इंजीनियरिंग कर लियो। Unfortunately, next day we had an accident, and we were on bed for 6 months, and my father died, and my mother and my brother also died in the accident. So my mother said, I am not comfortable in you doing engineering, because engineering में तो पता ही नहीं होता कहाँ admission मिलेगा. You have to go anywhere in India. So she said, and admission भी अच्छे college में चाहिए, तो she said कि we have only 2 colleges, अगर और ऑब्वियसली उनमें मिलना इज नॉट मतलब 100% श्योर, तो आईआईटी दिल्ली और दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के अलावा कोई थर्ड ऑप्शन थी नहीं, 90s की बात है। तो मतलब हमें और नहीं पता थी, उसके बाद मुझे पता चला एनएसआईटी और बहुत सारी चीज़ें और भी थी। बट तो वी प्लान कि अगर चलो 2 ही कॉलेज हैं एंड ऑब्वियसली प्रोबेबिलिटी इज लेस, तो शी सेड कि सीए कर ले, सीए में तो सबसे आसान है कि फादर का ऑफिस है जो ऑब्वियसली धीरे धीरे बंद हो जाएगा अगर नहीं करेगा तो अगर तू सीए करेगा तो आर्टिकलशिप में यू हैव टू सिट इन योर ऑफिस। तो दिस वाज द डिसीजन व्हिच वी टुक इन 10th 11th। देन आफ्टर 1 ईयर थोड़ा सा वो उनको भी थोड़ा मतलब कॉन्फिडेंस आया, तो शी सेड इन 12th की इफ यू वांट इंजीनियरिंग करनी है कर ले, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट स्कूल के पास में गया, इनिशियली भी 11th आई हैड गॉन कि मेरे को कॉमर्स विद कंप्यूटर साइंस दे दो, तो दे सेड नहीं, कॉमर्स विद कंप्यूटर साइंस नहीं मिल सकता, वी हैव लॉट्स ऑफ ऑप्शंस फॉर पीपल डूइंग साइंस। तो कॉमर्स वालों के खिलाफ थोड़ा भेदभाव रहते ही है स्कूल्स में, दैट्स नॉट एन इशू। तो अब उसके बाद क्या हुआ, चलो साइंस में नहीं हुए, अब बचपना था, तो अब जब कॉलेज में पहुंचे तो देन आई रियलाइज कि ये तो क्या हो चुका है कि नाउ आई कैन नॉट गेट एंट्री टू एनी कॉलेज इन इंडिया जो इंजीनियरिंग कर रहा है। मतलब दैट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, और वो बड़ा गुस्सा उस समय आ गया था, मतलब अब उतना फर्क नहीं पड़ता, बट उस समय लगता था यार ये साइंस में मेरे जो दोस्त कर रहे थे जिनको एलीट कॉलेजेस में एडमिशन नहीं मिला, दे स्विच टू कॉमर्स एंड दे डिड एमबीए एंड ऑल दोस थिंग्स। मैंने यार साइंस वाले कॉमर्स कर सकते हैं, कॉमर्स वाला साइंस क्यों नहीं कर सकता? बिकॉज वहां फिर वही वो कास्ट सिस्टम वाला है कि देयर इज अ हायरार्की, अगर आप होशियार हो तो साइंस करोगे, आप एवरेज हो तो कॉमर्स करोगे, आप बेवकूफ हो तो आर्ट्स करोगे, दैट इज द हायरार्की। आई एम नॉट सेइंग कि ये सच है, बट रियल सिचुएशन 90s में एटलीस्ट स्कूल्स के अंदर टीचर्स का यही परसेप्शन होता था। तो अनफॉर्चुनेटली मुझे भी ध्यान है, मतलब अगर कोई बहुत होशियार लड़का लड़का या लड़की आर्ट्स करता था तो ऐसा लगता था ये आर्ट्स क्यों कर रहा है तो दैट वाज द परसेप्शन।
तो अनफॉर्चुनेटली वो रहा इनिशियली, बट वो होता है ना लाइफ में, हर बुरी चीज का फायदा होता है। तो उसका बेनिफिट ये हुआ कि ऑब्वियसली आई डिड सीए, जो कॉमर्स के अंदर मतलब मोस्ट एस्पिरेशनल सीए ही करना होता है, तो वो तो हो ही गई। उसके बाद व्हाट आई डिड वाज पैरेलल में आई यूज्ड टू डू कोडिंग एंड ऑल। उस समय भी आई स्टार्टेड रीडिंग एआई की बुक्स 11th में, एंड एआई भी थोड़ी बहुत समझ आने लग गई थी, कोडिंग है। उसके बाद इंटरनेट केम तो जावा मिल गई, जावा के ऊपर आई स्टार्टेड कोडिंग। अब जावा भी बड़ा इंटरेस्टिंग सीखने का तरीका था, मैंने कभी जावा किसी इंस्टीट्यूट में नहीं सीखी। व्हाट आई डिड वाज आई टोल्ड माय मदर एनआईटी इज डूइंग अ ई कॉमर्स कोर्स, मेरे को तो आप करने नहीं दोगी बिकॉज आई एम डूइंग सीए, तो इट इज बेटर आप कर लो, एंड आप करोगी तो मेरे को भी आ जाएगा, थोड़ा बहुत आपको भी आ जाएगा, एंड फ्यूचर बिलोंग्स टू ई कॉमर्स। वो एक जनरल थॉट था उस समय। तो शी सेड ठीक है मैं कर लेती हूँ, एंड शी गॉट बेस्ट मार्क्स इन दी क्लास। बट उनको थोड़ा थ्योरेटिकल मार्क्स तो आ गए, थोड़ा प्रैक्टिकल कम आता था। बट मेरे को उनकी बुक्स पढ़ के आई लर्न जावा। अब वंस आई लर्न जावा एंड आई यूज्ड टू डू सेल्फ स्टडी ऑल्सो। मैं बीपीपी पब्लिकेशंस और एक गलगोतिया होता था इनर सर्कल में, वहाँ उनसे बड़ी बुक्स लाता था। एंड आई हैव स्टार्टेड ऑर्डरिंग बुक्स ऑन Amazon ऑल्सो। मैं मतलब ये उस समय की बात बता रहा हूँ, 2000 की। इन 2000 आई ऑर्डर्ड बुक फ्रॉम Amazon, 2 महीने में आती थी। तो Amazon.com से, तो आई ऑर्डर्ड एआई की बुक्स Amazon से एंड ऑल दोस थिंग्स। आई रेड लॉट ऑफ थिंग्स। अनफॉर्चुनेटली मेरे केस में थोड़ी सी प्रॉब्लम ये रही कि आई डिडंट हैव एनी मेंटर इन दो स्पेसिफिक थिंग्स, बिकॉज मेरे मोस्ट ऑफ द पीपल इन माय फैमिली आइदर वर फ्रॉम कॉमर्स बैकग्राउंड, और जो इंजीनियर्स भी थे दे वर फ्रॉम मैकेनिकल और वो मेटालिक इंजीनियरिंग उस टाइप की बैकग्राउंड से। तो कंप्यूटर साइंस की बैकग्राउंड का कोई था नहीं, तो नोबडी कुड हेल्प मी आउट। आई हैड टू डू एवरीथिंग ऑन माय ओन, एंड इन 2002 आई रियलाइज कि यार मैं तो सीए बनते जा रहा हूँ, बनना तो बिल गेट्स था, बनना सीए जा रहा हूँ। अब क्या करूं? तो देन व्हाट आई थॉट, एक दिन माइक्रोसॉफ्ट का ही देयर वाज सम मीटअप इवेंट वगैरह, तो आई केम टू नो अबाउट मोबाइल एप्स। तो माइक्रोसॉफ्ट वाज नॉट डूइंग फुल फ्लेजेड मोबाइल एप्स, वो कुछ नेट बेस्ड, डॉट नेट बेस्ड कर रहे थे। तो आई लर्न डॉट नेट। जब डॉट नेट लॉन्च भी नहीं हुआ था, सी शार्प बीटा में थी, आई क्रिएटेड सम टेली लाइक प्रोग्राम इन बीटा सी शार्प में। तो सी शार्प मुझे काफी अच्छी आ गई थी। एंड मतलब आई वुड से जो फर्स्ट लैंग्वेज जो मैंने फ्रॉम स्क्रैच खुद सीखी विदाउट एनी गाइडेंस या कुछ, वो 100% सी शार्प थी, वो जो सिर्फ मैंने बीटा की डॉक्यूमेंटेशन से सीख ली थी। एंड देन व्हाट आई रियलाइज वाज कि अब ये सी शार्प के साथ क्या करूं। एंड देन फॉर्चुनेटली वन डे आई गॉट एन इनवाइट फ्रॉम नोकिया, एंड नोकिया सेड कि वी आर डूइंग दिस इवेंट। एंड वो ना मेरे सीए एग्जाम के सेकंड डे था, मतलब आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ एग्जाम। तो अगर वो 2 दिन पहले इवेंट होता था, आई वुड नॉट हैव गॉन ऑब्वियसली टू द इवेंट। And in that event, I came to know about mobile apps. जो Nokia was saying, do mobile Java, J2ME जिसे कहते थे, and build mobile apps. And then I realized कि जैसे न्यूटन की जिंदगी में एप्पल गिरा है, मेरी जिंदगी में आज वो एप्पल गिर गया है। So I should start mobile apps, and this was in 2002, late 2002. सही सर, बिल्कुल बढ़िया सर। पहली बात तो सर आपकी स्टोरी इतनी इंस्पायरिंग है सर, मतलब स्टार्टिंग से हमने जितना भी पढ़ा, जितना भी सुना है सर, और जैसे आपने भी बताया सर, इट्स रियली इंस्पायरिंग। सल्यूट है सर आपको, योर वन मैन आर्मी। एंड सर मतलब इंस्पिरेशन तो सर बहुत ज्यादा है सर। Thank you. दैट्स वेरी नाइस सर, दैट्स वेरी नाइस सर। एक चीज एक्चुअली जो आपने अपना एक बहुत ही अच्छी स्टोरी अपने बारे में, अपनी पूरी जर्नी के बारे में बताई है, तो उससे रिलेटेड मैं पूछना चाहूंगा। और ये एक्चुअली सर स्टार्टअप्स ही नहीं, बिजनेस ही नहीं, बट लाइफ में भी बहुत ज्यादा वो होता है सर, रिलेवेंट है। वो ये है कि सर कोई भी इंसान हो या कोई भी कंपनी हो ना सर, वो हमेशा स्टार्ट करने के कुछ टाइम बाद या पहले से ही अपने फेलियर्स के बारे में काफी प्लान कर लेती है कि अगर हमें फंडिंग नहीं मिली, अगर हमें ये प्रॉब्लम आई, कंपटीशन बढ़ गया, तो हम क्या करेंगे। बट सर सक्सेस इज समथिंग जिसके लिए सिर्फ हम एम करते हैं कि है ना, कि अगर सक्सेस मिल गया तो चलो ठीक है, हम ये करेंगे ये करेंगे करेंगे, बट उसके लिए कोई सडन मतलब कोई सॉलिड प्लान नहीं होता सर। एंड कई बार ऐसा होता है कि मतलब आपका हार्डवर्क बहुत ज्यादा बिल्टअप होकर आपकी सक्सेस एकदम अचानक से आ जाती है, कोई ऐसा सिचुएशन आ जाती है, कुछ आ जाती है, तो एकदम से आ जाती है सर। तो व्हाट डू यू थिंक लाइक दैट बिकम्स द डिसाइडिंग पॉइंट। ये वो मेरे साथ भी हुआ। जब भी सोचा सक्सेस होगी, तब तो सक्सेस कभी हुई नहीं। जब भी सोचा फेलियर होगा तो सक्सेस हो जाती है। जी सर। तो क्या हुआ, छोटा सा एग्जांपल मैं देता हूँ। मेरे साथ सीए में हुआ। मतलब सीए में क्या हुआ कि वंस आई गॉट फीवर। तो मैंने ना, सीए में 2 ग्रुप्स होते हैं, तो 1 ग्रुप आई गेव एंड सेकंड ग्रुप में फीवर हो गया। आई थॉट ड्रॉप कर देता हूँ, बट माय मदर से ड्रॉप करके भी तो फेल ही हुआ ना प्रैक्टिकली, मतलब पास तो नहीं होगा। तो आई थॉट चलो दे देता हूँ। अब दिया तो ऑब्वियसली वो एक बुखार था तो रह गए,
अब वो एक ग्रुप हो गया, एक ग्रुप रह गया, तो वो पहली बार जिंदगी में फेल हुआ था लाइफ में। मैं उससे पहले मतलब कभी हुआ नहीं स्कूल में फेल, तो वो एक झटका था, मैंने फेल हो गया मैं तो अब मैं आई वाज थिंक मतलब आई वाज गोइंग डाउन इन टर्म्स ऑफ, मतलब एक वो होता है ना, आप डिप्रेशन तो वर्ड नहीं कहूंगा मैं, बट एक वो हो जाता है कि आपको एक अपने अंदर एक कमी लगनी शुरू होती है, मैं फेल हो सकता हूँ। एंड देन व्हाट हैपेंड, बट सितंबर 11 हुआ, जो वो जो एरोप्लेन वाला इवेंट था। एंड देन ना, एक वो होता है ना, जब समय अच्छा आता है तो जोश आ जाता है अपने आप ही। तो एक दिन मैंने टीवी खोला, मतलब आई वाज स्टडीइंग फॉर सीए, तो मैं जनरली पूरे दिन पढ़ता था, बट मैं थोड़ी देर सीएनएन देखता था। So I opened the TV and I saw George Bush sitting in Oval Office at 4:30 a.m. in the मतलब night. तो 4:30 a.m. basically था, पूरा नाइट हो रही थी, एंड CNN was covering कि president is sitting in the office. मुझे जोश आ गया, मैंने कहा यार, जिसकी कंट्री का इतना बुरा हाल हुआ है, वो 4:30 बजे बैठ के काम कर रहा है, उसको घबराहट नहीं हो रही, तो मैं क्यों घबरा रहा हूँ। एक एक वो जोश होता है ना, मतलब आई वुड नॉट से कि मैं कोई बहुत बड़ा अमेरिका का फैन नहीं था, बट हुआ क्या, वो ऐसा हो गया कि जितने अमेरिका ने बम बरसाए ना, तो हर बम मेरा एड्रेनलिन हाई करता रहा। तो मेरे 2 महीने एग्जाम बहुत अच्छे हुए, बिकॉज एवरी डे आई वाज स्टडिंग 8 to 10 आवर्स, एंड वो हर बार जब भी मैं CNN खोलता था, तो वो ऑब्वियसली वॉर चल रहा था, तो कोई ना कोई बम गिरा रहे होते थे, और वो 5 मिनट वीडियो देख के जोश आ जाता था पढ़ाई हो गई थी, एंड वो सीए क्लियर हो गई। अब थोड़ा सा मैं 2-2 मिनट और 2 इंसिडेंट्स बताता हूँ। एक बार क्या हुआ कि आई स्टार्टेड एन इनिशिएटिव कॉल ओपन क्लास, जो हम बिल्ड फॉर इंडिया में भी करते हैं। कुछ हद तक वो इंडिविजुअल लेवल पे आई वाज ट्राइंग कि कॉलेज स्टूडेंट्स को जोश दिलाया जाए, कुछ टेक्निकल नॉलेज भी दी जाए, एंड पैसे भी नहीं लेने हमने, एक जोश वो भी था। अब वो बहुत सक्सेसफुल नहीं रहा, मतलब आई वुड से मैं आज बहुत सारे आई एम मीटिंग लॉट ऑफ पीपल हु आर डूइंग स्टार्टअप कम्युनिटीज या एजुकेशनल कम्युनिटीज, तो आई वुड से इट वाज डिसेंटली सक्सेसफुल। मतलब मैं उनकी सक्सेस देखता हूँ, तो आई वुड से कि आई वाज इन द टॉप 20% ऑफ सक्सेसफुल पीपल इन इंडिया इन रनिंग कम्युनिटीज। बट जब मैं एज एन इंडिविजुअल देख रहा था कि यार उससे कुछ कमाई तो होती नहीं है, ना कुछ नाम हुआ ना कमाई हुई, ना जो आते थे उनमें भी 4-5 लोग थे जो सिर्फ खुश थे, बाकी लोग इतने ज्यादा खुश नहीं थे। एक लड़का जरूर आया करता था, देयर वाज अ बॉय कॉल्ड निखिल। तो ही यूज्ड टू से, सर जो ये आप कराते हो ना, लोगों को पता नहीं है क्या चीज है। अब ये सिर्फ ये एक ही आता था, मतलब ये हर इवेंट में आता था, बाकी सब गायब होते रहते थे। तो वो भी लगता था यार हम क्या गड़बड़ करते हैं, अगली बार क्यों नहीं आते लोग। अब वो चलता रहा, एंड आई गॉट सम नोटिस फ्रॉम इनकम टैक्स ऑल्सो एक दिन। एंड व्हाट हैपेंड कि मैंने कहा यार, मैं सीए होके इनकम टैक्स का भी नोटिस आ गया, और सीए की प्रैक्टिस तो बंद करी दी, क्योंकि सीए की प्रैक्टिस भी बंद कर दी थी, एंड इनकम टैक्स का नोटिस भी आ गया, मैंने कहा अपने में ही, और दूसरा ये ओपन क्लास का भी खराब रहा। तो मैंने कहा कुछ भी नहीं हुआ लाइफ में, मैं तो कहीं का भी नहीं रहा। एंड दिस वाज अराउंड 2011 या 12 की बात है, 12 आई थिंक, जनवरी 12 की बात है। वन डे एन ईमेल केम फ्रॉम ब्लैकबेरी। अब वो ईमेल क्या थी, अब मैं पूरा टूट गया था, मतलब मुझे लग रहा था ये ओपन क्लास भी फालतू में चला रखी है, बंद ही कर देता हूँ, इसका कुछ फायदा नहीं है। एन ईमेल केम फ्रॉम ब्लैकबेरी कि वी आर कॉलिंग यू फॉर एन ऑल एक्सपेंसेस पेड ट्रिप टू डिज्नीलैंड इन यूएसए। तो पहले तो मुझे लगा स्पैम होगी, पर वो स्पैम नहीं थी, वो रियल था। फिर आए रियलाइज, मैंने कहा ये अमेरिका के लिए एक बार पहले वीजा लगवाया था, वो तो कैंसिल हो गया था, तो अमेरिका वालों ने वीजा तो देना नहीं है। बट मेरे रिलेटिव हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, ही सेड, मैंने कहा अमेरिका जाने का इनवाइट आया है, आपको लगता है, जन्मपत्री देख के बताओ अमेरिका जा सकता हूँ मैं, जो सिचुएशन है इस समय ऑन ग्राउंड। तो ही सेड 100% जाएगा तू 1 महीने के बाद अमेरिका। आई वॉज वेरी, मतलब सरप्राइज। मैंने कहा यार ऐसा कैसे हो जाएगा, मेरे को तो 1% भी नहीं लग रहा कि मैं अमेरिका जाऊंगा, ये कह रहे हैं कि जाएगा। एंड एंड ऑब्वियसली वो अमेरिका की वो टिकट भेज दी ब्लैकबेरी ने। वी गॉट द वीजा, आई टुक माई होल फैमिली टू अमेरिका। एंड वो अमेरिका जाके, and मैं इतना ज्यादा दुखी था उन दिनों कि आई यूज टू हैव ना लिटिल बॉट ऑफ फियर ऑफ एरोप्लेन। तो वो इंडिया में तो प्रॉब्लम नहीं होती, 2-3 घंटे का ही होता है, पर अमेरिका जाने में 24 घंटे लगते हैं एरोप्लेन में। तो एक वो भी था, मैंने कहा कल को कुछ एरोप्लेन को हो गया तो आई यूज टू फील, मैंने कहा चल कुछ हो भी जाएगा तो कोई टेंशन की बात नहीं बिकॉज आई वॉज अ लिटिल डिप्रेस्ड इन दैट सेंस। तो अब उसके बाद मैं अमेरिका चला गया, वहां पर जाके वो ब्लैकबेरी की टीम के साथ मेरी ग्लोबल टाई अप हो गई। एंड मेरे पास एक इंडिया में एक लड़का होता था, वो कहता था सर मैं ना ब्लैकबेरी से आपको स्पॉन्सरशिप दिलाऊंगा, मुझे 50% पैसे दे देना।
मैं उसको कह रहा 50 नहीं ले, 25-30 ले ले, मैं दे दूंगा। एंड ही यूज्ड टू से नहीं, सिर्फ 50 से 1 रुपए भी कम दोगे तो नहीं दिलाऊंगा। तो मैंने कहा 450 पे नहीं हमने लेना। अब वहां जाके 1 रुपए भी देना नहीं पड़ा, ब्लैकबेरी वाज गिविंग मनी, ब्लैकबेरी वाज गिविंग टिकट, सब कुछ हुआ। एंड इंटरेस्टिंगली वो जो निखिल आया करता था उसको एक दिन हमने हैकेथन भी करी ब्लैकबेरी की, वहां विजय ने देखा और निखिल को रख लिया अपनी टीम में, जो विजय पेटीएम के फाउंडर हैं। एंड विजय सेड यार तुम मेरी कंपनी ज्वाइन करो। तो इनिशियली तो बिकॉज आई वाज डूइंग माय ओन स्टार्टअप, तो आई डिड नॉट ज्वाइन। बट वो जो एक ब्लैकबेरी के साथ काम किया उसी का नतीजा आई एम देयर इन पेटीएम राइट नाउ। आई गॉट टू सी द ग्लोबल डेवलपर रिलेशंस ऑफ ब्लैकबेरी, हाउ दे मैनेज एवरीथिंग। तो मैं वही बता रहा हूँ कि आपको पता नहीं होता कब फेलियर हो और अनप्लान्ड सक्सेस हो जाती है, बट सक्सेस में एक चीज मैंने देखी है कि यू हैव टू वर्क हार्ड। तो आपने वो 2.5 साल जब मैंने ओपन क्लास में मैं जाता था ना, तो वो मतलब इट यूज टू फील कि क्या हो रहा है। मेरी मदर भी कहती थी ये क्या कर रहे हो तुम, पहले तो ऑनलाइन या ऑफलाइन पढ़ाया करते थे, इतने 1000 रुपए चार्ज करते थे, अब तुम 100 रुपए में बच्चे को पढ़ाते हो, फिर भी बच्चे आते नहीं है, क्या कर रहे हो। मतलब मुझे खुद भी समझ नहीं आता था मैं कर क्या रहा हूँ। बट एट द एंड ऑफ द डे वन डे वो सब कुछ एक हैप्पी एंडिंग हुई। एक लास्ट चीज आई कैन शेयर, 2017 में आई मेट सम वेरी बिग पर्सन इन एजुकेशन इंडस्ट्री। पहले तो उन्होंने खुद ही मीटिंग के लिए मुझे बुलाया, मुझे तो समझ नहीं आई उनको मेरा कहाँ से नाम नंबर मिला, उन्होंने बुला लिया। फिर उन्होंने मेरी बेइज्जती भी करी आधा घंटा कि तुम्हारे आइडिया अच्छे नहीं है, बुरे नहीं है। मैंने कहा मेरी मदर को मैंने आके बताया तो बोली बुलाया भी खुद ही था उन्होंने, तू तो ज्ञानी था उनके पास। देन अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली उसी दिन मेरा एक दोस्त मिल गया एंड ही सेड यार तेरे आइडियाज तो अच्छे होते हैं पर किसी के समझ ही नहीं आते। तो वो भी एक बुरा लग गया, मैंने कहा ये क्या कह रहा है। एंड वो क्या हुआ, 1-1.5 महीना ना काफी खराब गया, मतलब इन टर्म्स ऑफ साइकोलॉजिकली आई फेल्ट कि यार सभी बेइज्जती कर रहे हैं, कुछ भी खराब जा रहा है। एंड देन आई विजय कॉल्ड मी वन डे, विजय मैसेज मी कि आके मिलो। अब मैंने कहा चलो बुला रहे हैं, वैसे तो अभी तक वो मेरी मदर भी बोली बोली पिछले महीने उन्होंने बुलाया था उससे तो कुछ नहीं हुआ, चलो अब जाके मिल गया। तो मैं विजय को पर मैं जानता था, ये जो दूसरे वाले थे इनको मैं पहली बार ही मिला था। तो विजय को मैंने कुछ आइडियाज बताए, उनको अच्छे लगे एंड ही सेड आओ ज्वाइन करो। एंड देन दिस बिल्ड फॉर इंडिया स्टार्टेड। एंड देन माय मदर सेड देख 1 महीने पहले तूने जिसको आइडियाज बताया उसने तेरी इतनी धुलाई करी, और 1 महीने बाद तूने जिसको आइडियाज बताया उसको सारे आइडिया पसंद आ गए। तो व्हाट आई एम सेइंग इज कि घबराना नहीं चाहिए। देखो ऑब्वियसली इन दी करंट सिनेरियो, जैसे अगर देखो कोरोना के टाइम में तो एवरीथिंग इज डिप्रेसिंग, नेगेटिव, इनकम भी कम हो रही है, सब कुछ ही कम हो रहा है आजकल। बट पॉइंट इज मेरे को पता नहीं क्यों पिछले कुछ दिन से लगने लगा है 2020 इज द बेस्ट ईयर इन लाइफ। नॉट ड्यू टू सब कुछ खराब हो रहा है, मतलब रोज कुछ ना कुछ गड़बड़ी होती है लाइफ में, बट यही अच्छी चीज है। ये वो है कि जैसे आपको महाभारत के अंदर ही गीता उपदेश मिला ना, जब चारों तरफ सब मर रहे थे, तो वही सेम चीज आई वुड से आज है सिचुएशन कि ये वो महाभारत वाला समय चल रहा है। एंड वो जो चलो कृष्ण भगवान गीता उपदेश देने नहीं आ रहे, बट एट द एंड ऑफ द डे वो जो इंटरनल एक कॉन्शियस है ना, वो आज राइज कर रही है। एंड व्हाट आई हैव सीन इज कि एक चीज जो मैंने मतलब बिकॉज वी आर एट द एंड, तो आई थिंक एक चीज जो मैंने लाइफ में सीखी है, जो मैं अपना पूरी जिंदगी का मैं कहूँगा अगर ये एक चीज मेरे से सीख ली तो मेरा जीवन सफल हो गया, वो ये है कि डोंट वर्क फॉर मनी, डोंट वर्क फॉर नेम, डोंट वर्क फॉर फेम, डोंट वर्क फॉर टेक्नोलॉजी की। मेरे को जैसे एलोन मस्क कहते हैं मुझे मार्स पे जाना है, मुझे मार्स में जाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं बड़ा क्लियर बता रहा हूँ। अरे धरती को तो बर्बाद कर दिया इंसानों ने, मार्स को जाके भी कर देंगे बर्बाद, मेरा अपना मानना है। जो सम पीपल से ह्यूमैनिटी को बचाना है, सी आप कितना भी बचा लो मृत्यु ने तो एक दिन आना ही है, पूरी स्पीशीज का भी एक दिन आना है एट द एंड ऑफ द डे। बट पॉइंट इज आपको दूसरों की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। इफ यू आर सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ पीपल यू विल विन। और ये मैंने आजकल थोड़ा महाभारत देखा जो स्टार प्लस पे आ रहा था, एंड व्हाट आई रियलाइज वो कृष्ण जी भी वही बात करते हैं। कृष्ण जी और करण जब एक साथ बात कर रहे थे तो वो यही हुआ कि करण की लाइफ में जो जो हुआ वही कृष्ण जी की लाइफ में होगा, किसी और ने पाला, हमेशा लोगों ने उनको ग्वाला का, उनको सूत पुत्र का। बट करण और कृष्ण जी में क्या फर्क था कि करण एक दुर्योधन के साथ हो गए, कृष्ण ने एक प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहे, वो धर्म युद्ध करा, उन्होंने लोगों को हेल्प करी। तो मेरा यह मानना है कि अगर आप लोगों को हेल्प करोगे ना तो आपका हमेशा भला होगा। एंड ये मेरे को, मैंने जब ओपन क्लास भी चलाई देन ऑल्सो आई रियलाइज्ड कि आपको ना मतलब ब्लैकबेरी वाज स्पॉन्सरिंग एंड ऑब्वियसली ब्लैकबेरी हमें अच्छा लगता था, मैंने कहा यार ब्लैकबेरी स्पॉन्सर कर रहा है, इसी इसी के इवेंट्स करो। देन आई रियलाइज कि उससे ना कम्युनिटी खत्म हो जाती है, बिकॉज आप जब एक ही ब्रांड के साथ जुड़ जाते हो तो कम्युनिटी खत्म हो जाती है। तो व्हाट आई रियलाइज इज कि ट्राई टू हेल्प मोर एंड मोर पीपल।
आपका करियर बन जाएगा. मेरी लाइफ इज अ टेस्टिमनी टू दैट कि जब भी कुछ अच्छा करना चाहे 2-3 साल बड़ी प्रॉब्लम आई, बट लॉन्ग रन में फायदा हुआ. जब भी अपना भला सोचा तो एक आध साल अच्छा रहा, पर 2-3 साल के बाद नुकसान हुआ. So so try to help people, try to solve problems of the world, and in that process you will build a career. In that process you will build a reputation. In that process you will learn a lot, because ये कॉलेज स्कूल्स ये सब तो मैं तो ये मानता हूँ कि these are all time pass. आजकल की दुनिया में everything can be learned online. एंड बुक्स अमेजन पे अभी मैंने 200 बुक्स पढ़ी हैं लास्ट 5 years में. अमेजन से ऑर्डर करते रहो, एक खत्म होती है दूसरी ऑर्डर कर देता हूँ मैं. तो आई एम सेइंग कि आपको सेल्फ स्टडी करना बहुत जरूरी है. एंड सेल्फ स्टडी का गोल सिर्फ वही है कि टेक अ प्रॉब्लम ऑफ द वर्ल्ड, ट्राई टू सॉल्व इट. अगर आपने वो प्रॉब्लम पूरी सॉल्व कर दी तो आप देखो, एलोन मस्क ने अभी तक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करी है, वो एलोन मस्क बन गए हैं. विजय ने अभी तक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करी है, जो उनका एम है कि 500 मिलियन इंडियंस को मैं बैंक दूंगा. अभी तक 500 मिलियन अकाउंट्स नहीं खुले हमारे, और वो विजय शेखर शर्मा, दा विजय शेखर शर्मा बन गए हैं. एलोन मस्क अभी तक मार्स पे पहुंचे नहीं है, बट वो दा एलोन मस्क है. तो आप ये देखो कि जब आप कुछ बड़ा सोचोगे तो आप बड़े आदमी अपने आप बन जाओगे, आधा करके भी. तो इसलिए जस्ट ट्राई टू फोकस ऑन दैट. एंड आई वुड से कि मैंने तो अभी तक अपने एम का 0.1% भी अचीव नहीं किया. स्टिल यू आर टेकिंग माई इंटरव्यू, तो ऑब्वियसली वो डिफरेंस तो हो ही गया. सर थैंक यू सो मच सर. हम तो इसको सर कॉम्प्लीमेंट की तरह लेंगे सर, कि अब जैसे आपने अभी कहा है, एंड सर किसी ने बिल्कुल सही कहा है कि सर ग्रेट माइंड्स थिंक अलाइक. मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहूंगा और अपने व्यूअर्स को भी बताना चाहूंगा कि कुछ टाइम पहले ही, जैसे आप अभी कह रहे हैं कि सर ये कॉलेज डिग्री, नॉलेज इज द प्रायोरिटी, राइट. नॉलेज अगर हो तो आप हर चीज अचीव कर सकते हैं. तो एलॉन मस्क ने भी अभी रिसेंटली ये कहा है कि एनीवन हु वांट्स टू जॉइन स्पेसएक्स डजंट नीड टू रिक्वायर अ डिग्री. अगर आपको काम करना आता है जो हम आपसे करवाना चाहते हैं, तो दे विल पे हिम एंड दे विल टेक हिम इन. तो दैट इज लाइक रियली अमेजिंग एंड कमेंडेबल सर. आपने सही बोला, और सर बिल्कुल सही बात है सर. आपका हार्डवर्क कहीं पे भी आपको हमेशा, हमें आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं पे आपको आपको मतलब आपको आके आपको सक्सेस दिला ही देगा सर. दैट्स रियली नाइस सर. सो सर सीरियस सेक्शन थोड़ा खत्म होता है, थोड़ा ठंडा करते हैं माहौल सर. एक रैपिड फायर राउंड हमने आपके लिए डिजाइन किया सर, जो स्पेसिफिकली सिर्फ आपके लिए है. आप जिस तरह से कैजुअली आंसर करना चाहेंगे जल्दी जल्दी आप बिल्कुल कर दीजिएगा. तो उसका सबसे पहला सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि सर कि आपका फेवरेट पास टाइम क्या है सर. अब आपने बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं, तो उसके अलावा हमें बताइए कि आपको और क्या करना अच्छा लगता है जब आप बिजी होते हैं, तो आपको क्या अच्छा लगता है. सी आई थिंक फेवरेट पास टाइम वैसे तो किताबें ही हैं हाल फिलहाल तो, बट आई वुड से कि अनदर पास टाइम इज टेकिंग अ कॉपी एंड ट्राइंग टू एनालाइज द वर्ल्ड. एक ये भी एक पास टाइम है. एक दूसरा आजकल जो पास टाइम काफी टाइम से हो गया है कि वो ये है कि आई वांट टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम ऑफ एजुकेशन, कि क्यों बच्चे अच्छी क्वालिटी एजुकेशन अफोर्डेबल प्राइस पे और एंटरटेनिंग वे में. देखो, वीडियो लेक्चर तो खैर बहुत सारे हो गए हैं मार्केट में. तो आई एम ट्राइंग कि कुछ ऐसा मिले मेरे को जो मैं अपनी एक एनजीओ बना के सॉल्व कर सकूं, या कभी कंपनी बनाने की जरूरत भी पड़े तो बना के कर सकूं. तो आई आई वांट कि वो एक हॉबी है. उसमें मैं थोड़ा पास टाइम कैसे होता है कि मैं अपने बच्चों के साथ आई ऑब्जर्व. जैसे एक मैंने अभी बड़ा इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट किया, आई थिंक वो व्यूअर्स को बड़ा मजा आएगा सुन के. तो ये फ्रॉम टाइम मेमोरियल ये एक थॉट रहा है कि लड़के मेल्स जो होते हैं दे आर मोर लॉजिकल एंड दे आर मोर टुवर्ड्स कार्स एंड गेम्स और ये सब खेलते हैं. लड़कियां प्ले डॉल्स वगैरह के साथ करती हैं. एंड ये जनरल एक रहा है. तो मेरे साथ बड़ा इंटरेस्टिंग हुआ कि मेरा बेटा वाज लाइक मी, ही वाज डूइंग कोडिंग 6 मतलब 6 years का था, 7 years का था. उसने स्विफ्ट में भी कोड लिख दिया जो आईओएस की ऐप बनानी होती है. 8 साल में आईओएस की ऐप बना दी. आजकल नहीं करता कोडिंग, आजकल वो खेलता है, फोर्टनाइट गेम खेलता है. बट नाउ इंटरेस्टिंग थिंग व्हाट हैपेंड वाज कि लास्ट ईयर व्हाट आई रियलाइज वाज कि मेरी बेटी बिल्कुल लड़कियों वाले पैटर्न पे जा रही है. सो शी वाज प्लेइंग विद वो गुड्डे गुड़ियों के साथ. एंड उसके साथ क्या था, आई रेड अ बुक ऑन थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस की 8 तरीके की इंटेलिजेंस होती है. तो व्हाट आई रियलाइज वाज कि मेरे बेटे की लॉजिकल इंटेलिजेंस बड़ी हाई थी, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस थोड़ी कम है. और मेरी बेटी की लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस बहुत हाई है रिलेटिव टू हर एज. शी इज वेरी गुड इन राइटिंग एंड अल्फाबेट्स वगैरह में, बट शी वाज वेरी बैड इन लॉजिकल रीजनिंग, जो एक स्टीरियोटिपिकल था कि मेल लॉजिकल में ज्यादा होगा और लड़की लिंग्विस्टिक में. तो आई हैड एन एक्सपेरिमेंट. तो मैंने एनालाइज किया, मैंने कहा ये मेरे बेटा, मतलब मैनी पीपल यूज्ड टू से आप होशियार थे तो आपका बेटा भी होशियार होगा, सॉर्ट ऑफ दोस थिंग्स, पर मैं उन चीजों पे थोड़ा ज्यादा बिलीव नहीं करता. तो व्हाट आई रियलाइज, मैंने कहा मैंने अपने बेटे के साथ ऐसा क्या किया है जो वो इतना लॉजिकली गुड हो गया, और मेरी बेटी के साथ ऐसा क्या किया जो नहीं हुआ.
तो देन आई रियलाइज, मैंने ना अपने बेटे को 2 साल का था जब से मैंने उसको मोबाइल गेम्स देने शुरू कर दिए थे, बेटी को नहीं देता था, क्योंकि वो थोड़ा सा हमें लगा नहीं बच्चों को कम देने चाहिए गेम्स एंड ऑल दोस्त, मेरी वाइफ को ली, बेटे के केस में थोड़ा सा मैं इनिशियली दे देता था। तो व्हाट आई रियलाइज वाज कि उसकी लॉजिकल एबिलिटीज ना मोबाइल गेम से बनी। तो अब मैंने क्या करा, मैंने अपनी बेटी को मोबाइल गेम्स दे दिए, एंड खासकर उसको मैरियो बड़ा पसंद आने लग गया। एंड व्हाट आई रियलाइज कि मेरी बेटी के अंदर ना वो सारे गुण आने लग गए हैं पिछले 6 महीने में जो मेरे बेटे में थे। एंड नाउ शी इज मेकिंग थिंग्स, शी इज डूइंग लॉजिकल थिंग्स, शी इज सेइंग मुझे भी कोडिंग सिखा दो। एंड वो जो पहले उसके वो बिल्कुल वो, अब वो गुड्डे गुड़ियों से भी कम खेलती है, अब वो ना ब्लॉक से खेलती है जैसे बेटा खेलता था। तो मैंने देखा वो चेंज आ रहा है। तो इट्स नॉट, आई वुड से कि अब ये मेरी हॉबी ना मतलब थोड़ी अजीब सी हॉबीज हैं ये, बट आई बेसिकली ट्राई टू एक्सपेरिमेंट अ लॉट विद लाइफ। तो मैंने ये एक्सपेरिमेंट से देखा कि वो जो स्टीरियोटिपिकल है ना, वो सिर्फ इसलिए है कि ऑब्वियसली गर्ल्स को वो चीजें देते नहीं है, या पेरेंट्स को भी लगता है कि मतलब ऑब्वियसली लड़की है तो गुड्डे गुड़ियों से ही खेलेगी सॉर्ट ऑफ। बट व्हाट आई रियलाइज इज गुड्डे गुड़ियों से तो अभी भी मना नहीं करते, मतलब आई एम नॉट सेइंग कि लड़कों वाले काम कर, वो भी गलत है। बट व्हाट आई हैव डन इज कि अब मैं देख रहा हूँ वो लॉजिक, अब उसका मतलब उसकी और उसके भाई की लड़ाई ये होती है कि मेरे को मैरियो खेलना है, अब आप फोर्टनाइट छोड़ के अब मैरियो मेरे को खेलने दो उस पे। एंड विच इज अ गुड थिंग कि वो भी आज चीजें बना रही है, एंड आई एम सीइंग कि उसकी लॉजिकल एबिलिटीज बहुत बड़ी है। तो व्हाट आई एम सेइंग इज कि मेरे को इस टाइप की अच्छी चीजें लगती हैं। ऐसे एक्सपेरिमेंट्स करना मुझे अच्छे टाइम पास लगता है। वाओ सर, दैट्स रियली नाइस। बहुत अच्छी बात बोल दी आपने सर, एंड बहुत ही प्यारा स्टोरी आपने शेयर किया सर। एंड एक्चुअली काफी इंपॉर्टेंट है सर, द इम्पोर्टेंस ऑफ गेमिंग, हाई एंड कोऑर्डिनेशन, लॉजिक, सब बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है हर चीज के लिए। सिवाय मतलब सिर्फ पढ़ाई जरूरी नहीं है, ये सब भी बहुत जरूरी है। तो सर अगला सवाल होगा आपके लिए कि सर आपकी टॉप 3 फेवरेट बुक्स कौन सी होंगी, एंड कोई एक ऐसी किताब जो आप चाहें कि पूरी दुनिया को पढ़नी चाहिए, सबको पढ़नी चाहिए। आई थिंक एक किताब जो सबको पढ़नी चाहिए तो ऐसी एकदम ध्यान नहीं आ रही, बट आई वुड से एक किताब ना जो मुझे बड़ा जिसका इम्पैक्ट हुआ और जिसके वजह से मैंने और किताबें पढ़नी शुरू करी, जी। वो ये है, देयर इज अ बुक कॉल्ड बैक ऑफ द नैपकिन। तो बैक ऑफ द नैपकिन मुझे पर्सनली बहुत अच्छी किताब लगती है, ऑल्दो मैंने अपनी वाइफ को या और लोगों को कहा तो ऐसा कोई वो नहीं है कि वो उनको पढ़ के उतनी अच्छी लगी जितनी मुझे लगी। दूसरी लीन स्टार्टअप फॉर ऑल स्टार्टअप फाउंडर्स, आई वुड से एक बार जरूर पढ़नी चाहिए, लीन स्टार्टअप। तीसरी व्हाट आई वुड से, बुक्स बहुत सारी हैं, 200 में एकदम याद भी नहीं हो रही मुझे तो पर्सनली ना। ये जो मेकिंग कॉमिक्स मैंने अभी दिखाई थी आपको बुक, मेरे को मेकिंग कॉमिक्स की जगह ना एक अंडरस्टैंडिंग कॉमिक्स है बुक, ये जो मैं आजकल री रीड कर रहा हूँ, इसके अंडरस्टैंडिंग कॉमिक्स है, मुझे तो पर्सनली वो बहुत अच्छी लगती है, बिकॉज इट टेल्स यू अबाउट मतलब कॉमिक्स एज एन आर्ट फॉर्म। और मेरे को ना पर्सनली आई हैव सीन कि मुझे विजुअल्स बड़े अच्छे लगते हैं, तो मेरे को कॉमिक्स और ये जो मैं आपको बता रहा था बैक ऑफ द नैपकिन, ये अच्छी लगती हैं। बट आई वुड से 3 बुक्स थोड़ा मेरे लिए कम है, 5-10 बुक बतानी हो तो देर आर वेरी गुड बुक्स बाय रॉबर्ट सी मार्टिन ऑन टेक्नोलॉजी। उसके अलावा आई वुड से एजाइल पे बड़ी अच्छी बुक्स हैं, जो एक स्क्रम के जो फाउंडर हैं उन्होंने भी एक बुक लिखी थी, मैं उनका नाम भूल गया। और काफ़ी और बुक्स हैं, मैंने अपनी ब्लॉग है medium.com/@skj सौरभ, उस पर मैंने लिस्ट वो 203 की लिखी हुई है। एक जो करंटली मैं रीड कर रहा हूँ स्टोरी, ये जो मैंने आपको अभी दिखाई थी थोड़ी देर पहले, ये स्टोरी मेरे को बहुत अच्छी लगी, बिकॉज इससे ना मेरे को ये समझ आ रहा है जितनी भी फिल्म्स आज तक देखी बचपन से, वो क्यों, मतलब मेरे को सलीम जावेद क्यों किस सीन में क्या लिखते थे शोले वगैरह में, वो समझ आ रहा है। एंड आई एम एबल टू अंडरस्टैंड ऑल दी फिल्म्स एंड ऑल। एंड मैंने तो खैर इसलिए पढ़नी शुरू करी थी बिकॉज आई थॉट कि आई हैड हर्ड कि स्टोरी टेलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट फॉर अ स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर। तो आई थॉट कि स्टोरी के बारे में पढ़ो, बट इसमें जाके मेरे को काफी स्टोरीज के बारे में इंटरनली समझ आ रहा है। एंड व्हाट आई हैव रियलाइज्ड इज कि ह्यूमन बीइंग्स आर बेसिकली लिविंग अ स्टोरी। तो आपको चारों तरफ स्टोरीज हैं, ऑब्वियसली जितने अच्छे स्टोरी टेलर बनोगे उतना अच्छा लगेगा। सही बात है सर, बिल्कुल सही बात है सर। तो दैट गेट्स मी तीसरे क्वेश्चन को सर। सर वो रहेगा कि आपका फेवरेट हैंग आउट प्लेस और आपका फेवरेट एक्टिविटी एट द पेटीएम ऑफिस, जो आपको सबसे ज्यादा करना लगता है सर। देखिए पेटीएम ऑफिस में तो सबसे अच्छी, मतलब हैंग आउट प्लेस भी पेटीएम ऑफिस में बतानी है, हैंग आउट कहीं भी। ओके, कहीं पे भी नहीं, पेटीएम ऑफिस का बता दीजिए, या फिर कहीं पे भी बता दीजिए सर। आपकी फेवरेट हैंग आउट प्लेस बता दीजिए, और आपकी फेवरेट एक्टिविटी जो आप पेटीएम पे करना आपको सबसे अच्छा लगता है, वो बता दीजिए। ये पेटीएम ऑफिस तो खैर अब तो कई महीने हो गए गए हुए जब से वर्क फ्रॉम होम हुआ है, बट मेरे को पेटीएम ऑफिस में ना जो सबसे अच्छा लगता है, सो देयर इज अ हेड ऑफिस में, देयर इज अ टॉप फ्लोर, सेकंड फ्लोर है, मतलब जहाँ पर विजय और
सारे सीनियर लोग बैठते हैं। तो जब मैं शुरू में जाने लगा ना, मुझे बड़ा अच्छा लगने लगा। मैंने कहा ऐसा लग रहा है जैसे स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गया। बिकॉज वहाँ ना एवरीबडी इज वेरी इंटेलिजेंट, और आप किसी से भी जाओ, प्रोडक्ट मैनेजमेंट और कई चीज़ों के बारे में ज्ञान मिलता है, बातचीत करने में बड़ी अच्छी अच्छी टर्म्स यूज करते हैं। एंड समटाइम्स आई रियलाइज, अगर ये 100-150 बुक्स जब मैंने पढ़ रखी थी, जब पेटीएम ज्वाइन की, अगर मैंने वो नहीं पढ़ रखी होती तो मुझे तो समझ ही नहीं आता ये लोग बोल के रहे हैं। तो आई आई फील कि वो मेरे को सबसे अच्छी जगह लगी पेटीएम में। तो एंड हैंग आउट प्लेस अलग अलग है, बट जनरली मेरे को सीपी जनरली अच्छा लगता है अगर टाइम पास के लिए जाना हो। अब तो बहुत टाइम हो गया गए हुए, बट सीपी में अगर इफ यू हैव टू हैव पिज्जा पास्ता वगैरह, वो सीपी में बड़े अच्छे आउटलेट्स हैं, एंड खान मार्केट में भी हैं, तो दिल्ली के अंदर तो वो अच्छे लगते हैं। बहुत बहुत किसको पता था सर आपको इतना मतलब घूमना फिरना और साथ में किताबें पढ़ना, मतलब मल्टी टैलेंटेड इंसान है सर। दैट्स वेरी नाइस सर, दैट्स वेरी नाइस सर। सर आखिरी क्वेश्चन सर, ये सर क्वेश्चन में मतलब मैं पर्सनली चाहूंगा पूरी सर, शायद इंडिया की आवाम आपसे पूछना चाहेगी ये सवाल। वो ये है कि सर पेटीएम कब वो छोटा सा परसेंटेज जो काटते हैं ना सर वॉलेट में ऐड करने टाइम या बैंक में ऐड करने टाइम, वो सर कब आप कम करेंगे या बंद करेंगे सर? वो क्यों करते हैं सर, वो बता दीजिए। क्यों करते हैं मैं बता देता हूँ, उससे आपको समझ आ जाएगा कि शायद वो कभी खत्म ही नहीं हो। मतलब अब वो डिपेंड करता है कि कभी कर भी दें खत्म, बट वो रीजन क्या है कि क्रेडिट कार्ड कंपनीज चार्ज एक्सॉर्बिटेंटली फ्रॉम अस। तो क्रेडिट कार्ड कंपनीज, मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं, बट दे चार्ज अपवर्ड्स ऑफ 3% फ्रॉम दी कंपनी। तो अगर आप क्रेडिट कार्ड से पैसे डालते हो 10,000 पेटीएम में, एंड देन इफ यू पे, तो हमें बहुत कॉस्ट आती है। तो अगर आपने 10,000 रुपये, आप समझ लो, आई पुट 10,000 फ्रॉम माई क्रेडिट कार्ड इन माई पेटीएम वॉलेट एंड आई पे टू यू, एंड यू टेक इट टू योर बैंक अकाउंट। अब प्रॉब्लम क्या होगी कि हमें तो कुछ मिला ही नहीं, और वो 3% चले गए। सर 3-4, मतलब वो बहुत एग्जॉर्बिटेंट है। तो उसमें क्या होता है कि कंपनी डजेंट वांट यू टू डू कि आपने डाला और आप वापस ले गए, क्योंकि अगर आई कैन पे यू 10,000, यू कैन ऑल्सो पे मी 10,000, और फिर मैं वापस ही अपने उसमें ले गया बैंक अकाउंट में। यस सर। तो एक एक और भी इसका मिसयूज काफी लोगों ने करते थे, क्योंकि वो पीपल यूज टू, मतलब वो क्रेडिट कार्ड में 30-40 डेज फ्री मिलता है ना क्रेडिट, यस तो सर। वॉलेट में डालते थे और फिर वो अपने पास निकाल लेते थे। तो उस मिसयूज को रोकने के लिए वो चीज बनी है, वॉलेट के वाला जो चार्ज है। तो इट्स नॉट, मतलब आई अंडरस्टैंड कि एंड यूजर को पता नहीं होता, तो उसको लगता है कि ये गलत कर रही है कंपनी, बट कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप वो नहीं करेंगे तो देन देयर वुड बी लॉट ऑफ स्कैम्स। कि बेसिकली आप क्रेडिट कार्ड पे एक मंथ का पर्सनल लोन लेना स्टार्ट कर दोगे पेटीएम को उसमें बीच में यूज करके। तो इसलिए आई डोंट थिंक कि वो ज्यादा हटेगा। द ओनली गुड थिंग इज कि आगे आगे क्रेडिट कार्ड एज अ इंस्ट्रूमेंट ही कम यूज होने लग गया है। अब यूपीआई हो रहा है या और चीजें हो रही हैं, तो आई बिलीव आगे आगे वो चीज कम हो जाएगी। मतलब then अब 1-2 साल पहले तक मेरा भी यही था कि मैं जितने भी पैसे पेटीएम में डालता था ना, वो सारे के सारे क्रेडिट कार्ड से ही डालता था। बट अब हमारी सैलरी भी पेटीएम बैंक अकाउंट में आती है, पेटीएम बैंक अकाउंट इज डायरेक्टली लिंक टू पेटीएम। तो क्या है कि नाउ आई डोंट रिक्वायर क्रेडिट कार्ड। अब जितने डालने होते हैं वो बैंक अकाउंट से, अगर मैं जनरल बताता हूँ तरीका कि आप पेटीएम बैंक अकाउंट में पैसे डाल लो आईएमपीएस करके अपने नॉर्मल अकाउंट से, और वो पेटीएम बैंक अकाउंट से फिर आप वॉलेट में डाल लो, तो उसमें कंपनी को भी बेनिफिट है, क्योंकि वो आईएमपीएस वगैरह का कोई खास चार्ज होता नहीं है। तो उसमें कंपनी को भी बेनिफिट है। तो आई थिंक वो ज्यादा लोग करना शुरू कर देंगे तो शायद फिर हटा दे, क्योंकि फिर वो क्रेडिट कार्ड की कॉस्ट नहीं आएगी ना। अभी तो क्रेडिट कार्ड इज अ वेरी बिग P&L आइटम, जो क्रेडिट कार्ड चार्जेस हैं। ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर। दैट वाज लाइक, इसके साथ हम अपने अनफॉर्चुनेटली सर अपने इंटरव्यू के एंड पे आ गए हैं सर। बट सर बिफोर वी क्लोज, एनी वन स्मॉल मैसेज जो आप हमारे व्यूअर्स के लिए देना चाहिए, कुछ भी सर, कुछ भी जो आप बोलना चाहें। ये मेरा मानना है कि लगे रहो, कभी भी थको मत, क्योंकि यू नेवर नो। मेरी लाइफ थोड़ी ज्यादा फिल्मी रही है। एक बार मैं इनकम टैक्स का बता रहा था ना, केस आया था, तो मैंने यस उनको सर। बताया आईटीओ को। तो कह रहा है आप झूठी कहानी सुना रहे हो। मैंने कहा नहीं, झूठी नहीं है, कहानी सच्ची है। कह रहा नहीं, ये बड़ी फिल्मी है। तो मैंने, मेरे फादर की डेथ हो गई तो ये कोई फिल्मी थोड़ी ना है। तो व्हाट आई एम सेइंग इज कि लाइफ में कोई भी आपको प्रॉब्लम्स आए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हर शाम के बाद एक सवेरा है। ये मैंने अपनी लाइफ में देखा है, एंड दैट हैज हैपेंड मेनी टाइम्स। तो मेरी लाइफ से अगर आप एक चीज सीखो तो बस ये सीखो कि हार मत मानो, चलते रहो, एंड बिल्ड फॉर इंडिया। बिकॉज हमारे देश को बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स चाहिए। तो आप एंटरप्रेन्योर बनो। हमारे देश को जॉब जॉब सीकर्स नहीं चाहिए, जॉब गिवर्स चाहिए, जो प्राइम मिनिस्टर भी कहते हैं। तो ट्राई टू बी एन एंटरप्रेन्योर। इट्स नॉट इजी, बट हर डर के आगे जीत है। अगर आप जीत गए तो स्काई इज द लिमिट।
On that note, sir, thank you so much, sir, अपना वक्त निकाल के हमारे साथ आने के लिए, sir. It was an amazing session, and we hope and we pray that, sir, आपको जो भी achieve करना है, आप Paytm को, आपको personal life पे सब आपको मिले. And with that note, sir, thank you so Okay, much. bye.